बातें अगर nice. I hope we're live. We are live. We are live, guys. Yes. We are live. Okay. Sorry, let me just start it so I can read live chat also. Okay. Okay, and we're live for episode 61 of the Discontent podcast. I am Aditya Khanna. With me is Bharat Misra. Hi. Bharat, hi, bol de. Hello, hello. And joining us is a very special guest, stand-up comic, UFC commentator and podcaster Shashwat Maheshwari. I am a podcaster also. Nice. I am out of all of your work, I think I am most like content with the number one bullshit, and I feel like it is the most criminally underrated podcast in this country. That is, I think that's my career in general. Criminally under. A lot of people say underrated. Nobody says criminally underrated. So they know something that I do. जुर्म होना चाहिए, number one bullshit नहीं सुन. But yeah, thank you for joining us, Shashwat. It's really nice to have you here. So हमने ये एपिसोड के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्म्स की बातें करते हैं, टीवी शोज की बातें करते हैं, बट हमने ऐसा कुछ टॉपिक आज रखा नहीं है, तो वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज of the diversity of your career, you know, and also because of my very little knowledge in films. I think you can't talk to me about films. What will I tell? दूल्हे राजा पता है मुझे. क्या बात करोगे? दूल्हे राजा is a great film. दूल्हे राजा पे हम लोग भरत और मैंने बात भी किया था. दूल्हे राजा पे अनआयरोनिकली हम लोग एक एनालिसिस वीडियो बनाना चाहते थे. अभी बना सकते हैं अबाउट हाउ इट्स अ क्रिटिक ऑन कैपिटलिज्म, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब वो क्या कुछ ऐसा ना, दूसरे के होटल में वो बना, कादिर खान के होटल में बनाया था ढाबा. One of the scenes is very symbolic about this. जिसमें वो ऊपर का एक मंजिल उड़ा देता है. You guys remember that? पहले कहता है कि नीचे वाली दो उड़ा दो, फिर नीचे की उड़ा दे तो पूरा, तो कहता है ठीक है, फिर ऊपर के दो उड़ा दो. एंड द बुलडोजर इज दिस बिग, ठीक है, वो ऐसे जाता है और ऊपर ब्लास्ट हो जाता है. Yes, I love the scenes because see, very tightly written script, right? Everything, all the jokes are very funny, and जब ड्रामा भी आता है तो जैसे उस समय बनती थी उस हिसाब से काफी अच्छी थी. But then एक जैसे गोविंदा के पास एक सुपर पावर है, ठीक है, कि he can read your mind, he can know what you're thinking, listen to this along, but never addressed कि हाँ ये हवे वाला है, सुपर पावर तो हो ही सकती है, ठीक है, एंड वो नॉर्मली बस जा रहा है और किसी ने कुछ बोल दिया तो इतनी जोर से मन में बात करेगा तो सुनाई पड़ेगा. But he never uses that superpower in any other situation. बस वो एक scene में हाँ बस मजाक करने के लिए, nothing. Govinda is walking Professor X. Yeah. Basically. Yeah. दूल्हे राजा is actually an amazing film. I think it's a damn funny film. Again, criminally underrated. criminally. उसमें वो नहीं है. ये वही फिल्म है जिसमें जॉनी लीवर was लालू for a scene. लालू का वो ऐसे पोल पे चढ़ता है, पोल पे चढ़ के कॉल करता है और कहता उसी सीन में तो उड़वाता है उसकी बिल्डिंग. हाँ, exactly. Amazing. So great start to the podcast. और ऐसी फिल्मों के बारे में और भी बात कर सकते हैं, but let's talk about your entire career trajectory, which is you started with stand-up, is that right? And I know for a fact that you worked with Bharat also. Yeah, very few people know this. Yeah. But Shashwat, for I think a year and a half or something, he used to head Filter Copy, the editorial, right? If I'm wow. Yeah. He used to head an entire team of writers before it became defunct. Yeah. As soon as I left, can you believe that? As soon as I left, the team was gone. नहीं, तो उन्होंने मंगाया. उसके बाद जब मैं छोड़ रहा था ना, तो उस टाइम में I think कॉमिक्सतान का भी टाइम शुरू हुआ था, and I had already put in my papers, लेकिन कॉमिक्सतान चांस की बात है उसी टाइम हो गया. तो मैं जा रहा था, ये लोग और वो टीम didn't want कि कोई अभी मतलब जाए, because जो भी उनका सिचुएशन था with the other company, तो whatever. लेकिन चांस की बात है कि जैसे ही मैं गया और वो टीम हट गई, सारे लोग चले गए, और एंड देन लोको या कुछ स्टार्ट हो गया, समथिंग एल्स. सो ऑल द एडिटोरियल टीम लाइक ट्रांसफर टू द गेमिंग वाला.
ओवरनाइट पूरा ऐसा जो आर्टिकल लिखते थे ना लोग फिल्टर कॉपी पे, they got shifted to other teams. And some people just like kind of left, like I think Hiba तो पढ़ने जा रही थी वैसे भी. हाँ, she's become a legend, like a she became a journalist basically. Which is a commendable feat to go from filter copy articles. From any, like content writers never become journalists. Journalists sometimes become content writers. ये उल्टा कभी नहीं होता. Very subtle. That's true. But no, it's interesting what you said. And I mean, I think I saw you for the first time on Comicstan, and I think a lot of people also did. I just want to start off on how was that experience, and how long were you doing open mics before that? I was doing open mics for at least 3 years, 2.5, 3 years. मतलब मैं दिल्ली में था पहले, and I moved to Bombay. उसके बाद Comicstan आया यहाँ पे, तो I don't know, मुझे पता नहीं था कि करना है कि नहीं. I took a chance. And I think ना भी करता तो ठीक ही रहता, इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं. But I did it. और लोग ऐसे बोलते हैं ना कि रिग्रेट नहीं होने चाहिए, तो ठीक है, अगर वो वाली बात मान ली जाए तो नहीं करेंगे रिग्रेट. It was an experience. I don't know if it was positive or negative, but it was an experience. But I think you among apart from a couple of other comics on that show, I remember, like definitely Aishwarya Mohan Raj and आकाश गुप्ता, no? आकाश गुप्ता दूसरे सीजन में था. Sorry. So a couple of you guys actually stood out the most for your tone, you know, like you guys had a very strong tone of the way you do comedy. For example, like one of my favorite things to do on Twitter actually, and I would recommend everyone to do this, is to scroll Shashwat's timeline. Whenever you are bored or you read like some angry shit on Twitter and you're just annoyed, you should just go, because it has some of the best one-liners I have ever come across. It's like really funny shit. यार ये comment अच्छा है, sorry. हैरी पॉटर चाचा कैसे हैं? हैरी पॉटर चाचा कैसे हैं? Nice. वो किसी जोक का रेफरेंस है. It's a joke ref. Yeah. Anyway, so yeah, I think Twitter's fun. I just try कि मैं किसी और का पढूं ना कुछ. मेरा बस एम है किसी भी चीज में, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे ट्विटर हो, I just want the technology जिससे मैं कुछ ना देखूं, सिर्फ अपना लिख के कूड़ा, और फिर then I leave. I don't want to see other stuff, but somehow उनका एल्गोरिथम ऐसा है कि वो बाकी लोगों का भी सामान दिखाते हैं, which I don't like. But आजकल सब लोग यही करते हैं ना, मतलब they are into engagement and engaging with your audience and all of that. I don't reply, I don't comment. मैं बस अपना लिख के भाग जाता हूँ. I don't want to see other people. You know, before recording this, before we got onto this episode, I was just telling Bharat that first of all, I don't think Shashwat interacts with the audience that much, because like I am a subscriber of your number one bullshit podcast. Oh no. But here's the thing. Every time I want to listen to an episode and I type number 1, I have to type the full thing. Otherwise, you won't show it to me. नहीं आता. So you have gone out of your way to make your podcast inaccessible to people who are subscribed already. मैंने बेल आइकॉन भी दबाया उसमें, by the way. यार क्यों बेल आइकॉन दबाने के बाद भी नहीं आता? नहीं आता, आता ही नहीं. हाँ. बट वो हर चीज में, इंस्टाग्राम पे भी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम सर्च करते नहीं मिलता, फिर कुछ कातिल कबूतर क्यों है नाम, मैं क्या मन किया डाल दिया क्या. वैसे कातिल कबूतर क्यों है नाम, मतलब what is the... यार देख, शुरुआत में क्या है ना, जब लोग पूछ रहे थे तो आई थॉट ऑफ अ फ्यू स्टोरीज, तो मैंने 4-5 स्टोरीज बनाई और अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टोरी बता दी. बट देयर इज नो रीजन, ऐसे ही रख दिया था मैं. बट मैं स्टोरीज बहुत बताता हूँ कि एक हमारे मोहल्ले में बगल में ना ऐसे एक लोटा रखा था पानी का बहुत भारी, और हमारे जो पड़ोसी थे वो बड़े क्रिमिनल टाइप के थे, अच्छे नहीं थे. फिर एक कबूतर आया, उसने लोटा गिरा दिया, उसके सर पे गिर गया, बंदा मर गया. तब some random shit, I made like 3 or 4 stories like that and told it to different people, and they were like, oh हमको असली स्टोरी पता चल गई, and then they're telling their friends, but I mean there's no story. कातिल कबूतर just made sense. It sounds funny. अच्छा. Okay, so while we're talking about your stand-up mainly, I see George Carlin का poster behind you. So obviously Carlin तो एक बड़ा मतलब वो जो भगवान टाइप ही है वो सीन, मतलब कॉमेडी का. But what are your influences mainly? Like this guy, Louis C.K. over there. हाँ. Then there's Mitch Hedberg over there. नॉम मैकडोनल्ड डालूंगा मैं, उसका पोस्टर है नहीं मेरे पास अभी. बट कार्लिन का मैं ऐसा कोई खास फैन नहीं हूँ, किसी दोस्त ने मुझे पोस्टर दे दिया, मैं चिपका दी. अच्छा. मैं सही है, कार्लिन भी अच्छा. ये देख बीच में जिसका पोस्टर लगा है वो मेरा पोस्टर है, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट.
वो मैंने लगा रखा है, सबसे बड़ा पोस्टर मेरा है, बाकी के छोटे छोटे। बट आई पुट नॉर्म मैकडोनल्ड व्हेन आई एम बिग फैन ऑफ नॉर्म मैकडोनल्ड। तो मेरे जितने भी फेवरेट हैं वो सब मर रहे हैं यार। मिशेल मर गया, नॉर्म मैकडोनल्ड मर गया, अभी लुई सी के बचा वो भी कगार पे ही है। तो 2-3 साल बाद वही होगा, सारे लेट हो जाएंगे, फिर हम ही बचेंगे खाली। लुई सी के सोशली तो मर ही चुका है, सोशली मर देखा चुका जाए है, तो। काफी हालत खराब। हाँ अभी नया वाला स्पेशल, दो वेरी वेरी गुड स्पेशल, लेकिन जब वो बोल रहा था तो उसका यहाँ पे हिल रहा था, ऐसा बड़ा अजीब लगा यार मुझे, देखा कि ये 2 साल आई थिंक और चल पाएगा बंदा। क्या अच्छे जोक्स थे बंदे के, लेकिन what the fuck man? Nice, great. But yeah, so we are like about your influences. Like, what was it that got you? Okay, what was the first stand-up that you saw, and what is your background first of all? Like, where do you come from? What is your एजुकेशनल बैकग्राउंड और जस्ट नॉर्मल everything, anything? यार मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा भी जॉब करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में थे। उसके बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, देन आई वेंट टू बिट्स, वहाँ पे पढ़ाई करी, देन आई वेंट टू दिल्ली जॉब वगैरह के लिए। और आई थिंक बिट्स में पहली बार किसी ने मुझे लुई सीके का वीडियो दिखाया था। Okay. तो वो देख के मुझे लगा था, मतलब आई हैड सीन स्टैंड अप बिफोर बट आई डिडंट नो कि वो स्टैंड अप है, क्योंकि मैंने राजू श्रीवास्तव के बिट तो देख ही रखे थे, या फिर कभी उसका देखा था, रसल पीटर्स का, सबसे पहले सब लोग वही देखते हैं। वो देखा था, बट आई नेवर थॉट कि ये स्टैंड अप है। मैंने कहा हाँ ये कर रहा है कुछ, जो भी एक्टिंग कर रहा है बहुत सारे अलग अलग लोगों की, मिमिक्री टाइप लगा था मुझे। देन आई सॉ लुई सीके एंड ही वाज टेलिंग हिज ओपिनियंस, तो मुझे लगा यार ये भी कर सकते हैं, ये स्टैंड अप है। दैट इज व्हेन आई थॉट कि यार स्टैंड अप इज समथिंग दैट आई कैन डू, आईड लाइक टू ट्राई। एंड आई थिंक मैं इनका AIB का पॉडकास्ट सुन रहा था एक, जिसमें खंबा वाज टॉकिंग अबाउट TISS, he was studying in TISS and he was doing stand up. तो वो पता नहीं मैंने सुना, और मैं बैठा हुआ था घर पे, मैं अप्लाई कर दिया TISS में फिर मैं एग्जाम वगैरह दे दिया, मैं पहुंच गया TISS में इंटरव्यू वगैरह देने। एंड फिर उन्होंने कुछ पूछा होगा कि क्यों आना है TISS में, खंबा का सुना था पॉडकास्ट, सही लग रहा था। वो लोग कहते हैं भाई यहाँ पे लोगों को जरूरत है, स्टडी करने नहीं आते लोग यहाँ पे, पॉडकास्ट सुन के आगे पढ़ाई करने। बट देन मैं शुरू कर दिया था, फिर मैं दिल्ली, आई मूव टू दिल्ली, और मैं स्कूप वूप में काम कर रहा था तब। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर स्कूप वूप, क्योंकि मैं दिल्ली में ओपन माइक करने थे मुझे, तो ओपन माइक सिर्फ करके तो पैसे कमा नहीं सकते, तो आई वांटेड टू डू समथिंग टू जस्ट अर्न मनी एंड देन डू माइक्स। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्कूप वूप, आई स्टार्टेड डूइंग ओपन माइक्स इन दिल्ली, एंड दैट्स व्हेन स्टार्टिंग 2014, तो अभी तो 7 साल हो, 8 साल चल। Oh, great. मतलब you kind of started very early, I would say, right? Yeah. In our मतलब timeline. Would you say you're like that second batch of comedians, Yeah. like how people like to classify it as like? I guess, yeah. मेरे पहले के जो लोग हैं वो यही EIC और AIB वाले लोगों ने पहले स्टार्ट किया होगा, और दिल्ली में बहुत कम ही लोग थे। मतलब जब हम गए थे तो ये मेरे साथ के अगर कंटेम्प्रेरी देखो तो ये प्रत्युष है ना, मानिक मेरे साथ स्टार्ट किया था, उपमन्यु मेरे से 1-1.5 साल पहले का है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब ये लोग सेम टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। और आज देखो गैप बाद में बनता है, शुरुआत में विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर साथ में। But you know, if someone was to track the Indian comedy scene, stand-up scene, मतलब कितना मतलब it's kind of romantic actually, क्योंकि देख शुरुआत कैसे हुई, सबने अपने ग्रुप्स बनाए, सबने अपने, फिर सबको रियलाइज हो कि fuck this shit, we will just go on our own separate thing, कि ये चलने नहीं वाला, and how quickly that shit died out, you know, like now I don't think anybody will like, have you ever considered forming like a comedy troupe or something? नहीं, कलेक्टिव नहीं सोचा था, लेकिन हमने ओपन माइक स्टार्ट करने के लिए एक चीज सोची थी। तो दिल्ली में हम लोग सोच रहे थे कि 3-4 कॉमिक्स मिलके वील स्टार्ट ओपन माइक्स, तो उससे क्या होगा, हमको स्टेज टाइम भी मिल जाएगा, और अगर हम किसी वेन्यू पे करेंगे तो पैसे भी मिल जाएंगे। फिर हमने 1-2 वेन्यू पे किया, 1-2 परफॉर्मेंसेस की, और वो पैसे नहीं दे रहे, तो हमने कहा छोड़ो कलेक्टिव यार, अकेले अगर पैसे नहीं मिल रहे तो क्या पॉइंट है, स्टेज टाइम तो कहीं भी मिल जाएगा। तो देन वी लेफ्ट इट। But I actually wanted to know कि यार ये ecosystem कैसा है, मतलब from the outside I don't know कि like what is there a sense of कि हाँ यार हमें community है, या हम लोग बहुत कम लोग हैं तो कम्युनिटी अपने आप बन जाती है। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि लोग फॉर्म करने के लिए तैयार हैं कि आ जाओ हमारे साथ करके काम करो। बट अब कोई जयपुर में स्टार्ट कर रहा है, वहां पे 12 कॉमिक हैं, तो दोस्त बन ही जाएंगे, तो अपने आप कम्युनिटी बन जाएगी। वैसा है, बॉम्बे में बहुत सारे हैं तो फिर नवी मुंबई वाले दोस्त बन जाएंगे,
और बैंड वाले लोग बनते हैं. I guess that is how community is formed. बाकी the industry is very small if you call it an industry. I mean it's very few people. So automatically you get to be in a community. By the way, I've always wanted to ask comedians this thing in India right now is that do you see yourself purely as a comic and or do you see yourself as a YouTube content creator also? Because like if I look at YouTube right now, it's partially it's either like comedians on YouTube dominating the space a little bit, or it's people in Haryana, okay, in their SUVs or doing like really fucking weird sketch shows, right? So I'm just saying, like, what is your outlook to this? Like, do you ever feel like, यार अगर मैं भी चेस खेलना शुरू कर देता पहले से, तो like, do you ever get that kind of feeling कि like I think you haven't seen. Sorry, yeah, go on. I'm saying I don't think you've seen enough YouTube to know. क्योंकि मैंने इतने सारे वो देखे ना नीश देखे, मुझे अब वो नीश है भी नहीं, इतने बड़े हो गए. तो जैसे एक बंदा है जो मिट्टी में खोद के घर बना देता है, ठीक है ना, रिजॉर्ट बनाता है, मिलियंस ऑफ व्यूज, ठीक है. फिर एक बंदा है जो पटाखे फोड़ता है और उसका वीडियो लेता है. दैट इज वन जॉनर ऑफ YouTube वीडियोस. तो वो पटाखे फोड़ रहा है, कभी वो एसिड के ऊपर कुछ डाल रहा है, धुआं बन रहा है, कभी वो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को ऐसे धुआं बना के उसका वीडियो ले रहा है. तो ये सारी चीजें हैं ना. एक बार उसने 2 मोटरसाइकिल के बीच में एक रॉड जोड़ दी और बोल दिया कि ये डबल मोटरसाइकिल बन गई. तो ऐसे भी हैं, आप लोगों को पता नहीं है, यू डोंट वॉच इट, दैट्स व्हाई यू डोंट नो. एंड देयर इज वन जॉनर जिसमें एक बंदा है वो जो क्रिमिनल्स हैं उनका इंटरोगेशन होता है ना, तो उसके वीडियोस को लेता है और उसको एक्सप्लेन करता है. एंड आई एम एडिक्टेड टू दैट. वो मैं सारे देख रखे हैं YouTube. तूने देखे नहीं ये वाले? भाई मेरे को बहुत ही पुश किया ये वाला कंटेंट. आई थिंक शायद तो मेरा एल्गोरिथम काफी सिमिलर है. या JCS नाम है उसका, जिम कांट स्विम करके. JCS क्रिमिनल साइकोलॉजी. अगर आप देख रहे हो ये अभी तो गो सर्च. And then this is a rabbit hole. Then you won't watch all of them. ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको. हाँ, तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट है. What you mentioned about people जो खोद के वो जो primitive technologies करके ऐसे वो अब तो 20 चैनल बन गए. And the other day I saw like this guy talking about I lived in a rainforest for a year, okay, and I did all this shit. And मतलब उसने 3 घंटे का वीडियो मैंने पूरा देखा, ठीक है. और उसने पूरा मतलब उसने अपना पूरा एक सोसाइटी बनाई है, ठीक है, अपनी उसकी मक्खियां है, उसने ग्रो किया, सोसाइटी रीडिफाइन कर दी. हाँ, और बट पता है उसने लोग देख कितना हरामी है. देख हम लोग कंटेंट बनाते हैं, हमको सारे पॉजिटिव कमेंट, ठीक है, हम लोग घर पे बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, लाइव स्ट्रीम, ठीक है, इसमें खाली 1500 रुपए जूम का खर्चा लगता है, बस वही है. बट ये बंदा फॉरेस्ट में रहा, लोग पता है कमेंट क्या कर रहे हैं, I know you did not go, you did not stay here for 1 year, you went back in the middle, where is this? मतलब उसने कब पकड़ लिया यार लोग. So I also feel bad for these kind of creators a little bit. कि हमें तो फिर तारीफ करनी नहीं चाहिए किसी को. No, you should feel bad for all kinds of creators. मतलब मुझे फालतू में गाली पड़ती है ऐसे, तो मैंने क्या गलती करी? मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, एक कोई बोलता है कि ये जो जोक में बोल रहा है वो झूठ है, तो भाई झूठ ही बोलूं, सच थोड़ी बोल दूं मैं. क्या रे, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो तुम बोल रहे हो सब गलत है. हाँ भाई, जोक बना रहे हैं. बट पीपल आर एंग्री एट एवरीथिंग यार. लोगों को कुछ पता नहीं होता. एंड ऑडियंस की रिएक्शन को कभी ध्यान ही नहीं देना. सब बताएं, यू शुड ऑलवेज सी कि तुमको किस चीज में मजा आ रहा है, वो करो. कुछ लोग मिल जाएंगे. No, that's that. I mean, I don't think there could be another way for a comedian to operate, no? Like, no, there's so many. There's one way कि जो लोगों को पसंद आ रहा है वही करो. Of course, तूने देखा नहीं है? Are you not looking at the ecosystem, the kind of comic? There's so many. जो जनता को पसंद आ रहा है वही कीवर्ड्स लेके उस पे स्टैंड अप किए जा रहे हैं. मतलब है बहुत. बट कोई अभी मैं अजीज अंसारी का स्पेशल देख रहा था, उसमें वो बोलता है कि किसी कॉमिक ने उसको बताया, किसी आर्टिस्ट ने उसको बताया कि if you are okay with earning a little less money, then you can take good decisions. If you are okay with being not like as rich as possible, then I think you can take nice decisions. That's true. But okay, so I also want to come to, and I think you are wearing a UFC t-shirt also. So to let everybody know that Shashwat, apart from being a comedian, is also a UFC commentator. I don't watch UFC, but I watched an episode some time back, and मैं हिंदी कमेंट्री सुना उसका. And it was a lot of fun, by the way.
Yeah, it's very but good. वो 5 बजे आता है रे, वो सुबह 5 अच्छा. बजे आता है. So then that's the only issue. But I want to ask you, how did this happen? How did you end up doing commentary for UFC? And was this something you were interested in for a while, Yeah. or tell us about that? काफी टाइम से यार, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग विथ यूएफसी, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पे किससे बात करूँ. मतलब यूएफसी के पास तो इंग्लिश कमेंटेटर हैं, वो उनको चाहिए नहीं. उनके पास एनालिस्ट हैं, एक्स फाइटर्स, तो उनको चाहिए. तो वेयर डू आई फिट इन? तो आई वाज ट्राइंग कि यहाँ पे इंडिया में अगर कुछ होता हो, जैसे स्पोर्ट्स कीड़ा टाइप के अगर जो भी वेबसाइट वो एनालिसिस करने को दें, बट दे वो आल्सो नॉट इंटरेस्टेड. फिर चांस की बात है, आई गॉट टू नो कि सोनी हैज द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉर यूएफसी. तो आई गॉट इन टच विद द पीपल. मैं ईमेल भेजे उनको और बोला कि मुझे कुछ करना है, मैं कॉमिक हूँ और मैं ये सब करता हूँ. एंड व्हेन दे वांटेड टू डू कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री का उनका जब प्लान बना, तो मैं पहले मेल भेज रखे थे उनको. तो दे कॉल्ड मी फॉर ऑडिशंस. फिर ऑडिशन किए, 5-6 ऑडिशन किए. Oh, nice. So I wanted to ask you, and I watched one of the episodes, as I told you. How difficult is it for you, a comic, to do commentary? Because I'm assuming there's a lot of standards and practices that you have to follow. You have to, because it's Hindi, Yeah. you cannot deviate from. Or मैं जब भी सुन भी रहा था, the other commentators are like your normal sports commentators, ठीक है? Right. And they're doing it मतलब normally. But Shashwat ka, I feel like I could always hear like a little smirk, or like a little like he's trying to control. Like, how does that work for you? And is there some blooper that you can tell us about? There can't be a blooper यार, लाइव है. मतलब ऑन एयर. एक बार मैंने ऐसा कर दिया था, आई टेल यू, कि एक बार वो ऑडियंस दिखाते हैं ना, तो सेलिब्रिटीज आते हैं उसमें, तो वो सेलिब्रिटी दिखा रहे थे, ठीक है, एंड दे शोड सम ब्लैक वुमन एंड आई सेड, ओह सेरेना विलियम्स. और बहुत डांट पड़ी यार. प्रोड्यूसर बोलते हैं ये पागल है क्या, ये ऑन एयर है, लोग ये पॉडकास्ट नहीं, मजाक नहीं चल रहा है. तो आई हैव टू नाउ कंट्रोल. कई बार मेरे दिमाग में ऐसे जोक आते हैं कि ये बोल देता हूँ, है ना. एग्जैक्टली. यार प्रोड्यूसर डांटेगा, और मतलब इनके चैनल का सवाल है, मैं अपने यूट्यूब पे तो कुछ भी बोल देता हूँ. देन आई हेल्ड माई सेल्फ बैक. तो मैं कई बार ऐसा होता है कि मेरे मन में कुछ हो रहा होता है, मैं माइक नीचे रख देता हूँ और बोल देता हूँ, बट आई कांट से इट ऑन द माइक. इट्स टफ. या Fuck, wouldn't be amazing like if you I hope like you get to do like I thought अभी ये जो IPL में, I don't know if you watch cricket. दोस्त but क्या था? कुछ तो था दोस्त करके था. दोस्त जो भी है. हाँ, मैंने भी ऑडिशन दिया था, लिया नहीं उन्होंने मुझे. ओ नहीं लिया. हाँ, और उसको वो यार, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए. हाँ, नहीं नाम मत ले. हाँ, पर मेरे को एक्चुअली नाम याद भी नहीं है. So this works out. But the guy, some guy, उसको ले लिया. अच्छा, बताता हूँ क्या हुआ. तो ये हॉटस्टार का था, है ना. तो उन लोगों ने वो 3 पैनलिस्ट को यूज कर, या 3 लोगों को जो जिनको करनी है कमेंट्री, उनका पैनल बना के और फिर कमेंट्री करवा रहे थे. तो जो हमारा पैनल था, उसमें जो 3 लोग थे वो क्रिकेट के फैंस थे, ठीक है. तो वो हम नॉर्मल टाइप कमेंट्री करने लगे. तो वो कहते हैं हमको ये थोड़ी चाहिए, ये तो हमारे पास है ही यार, क्या बोल रहे हो. कह रहे तुम कुछ इसमें मस्ती करो, और हम ऐसे कर रहे हैं. मतलब हम एक्चुअल बातें भी बीच बीच में बोल रहे हैं, कह रहे नहीं इसमें कुछ और मसाला डालो. तो देन दे डिडंट लाइक. शानदार ड्राइव ऐसे अगर कमेंट्री तो शानदार ड्राइव भी दे वोंट लाइक. दे आर लाइक कि तुम मार रहा है वो बंदा, और तुम बताओ कि बचपन में मेरे चाचा मेरे को बैट से बहुत मारते थे, ये सारी चीजें. तो वो अब मतलब इट वुडंट फिट. ऐसा वो हल्का कॉमेडी करने की कोशिश वो कर रहा है. वो पता चल रहा था वैसे भी. हाँ, बट इफ यू लाइक द गेम देन यू कांट डू दैट. अगर तुमको स्पोर्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो तुम देखते हो ना. मैं ये थोड़ी क्या होता था बचपन में, वही बताया. राइट. तो थोड़ा, you know, one of the funniest things, and I'm like really heavily into cricket, and I watch this guy's podcast, both of theirs, Akash Mehta and that guy यार, the Sikh guy. नहीं, तूने नहीं देखा, मेरे को मालूम है. Bassi nahi re, Bassi is not even Sikh, first of all. Okay, but the Angad. So, and the funniest thing is, I don't know if there is like recorded version of this shit, but if you watch IPL matches and where Angad is also there in the Dost wala commentary, he's like a proper cricket nut, right? Like he's has a podcast and everything. तो वो ट्राई कर रहा है, मतलब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रही है मैच में, और वो ट्राई कर रहा है बोलने का इसके बारे में, और बाजू से ये लोग मतलब करते आ रहे हैं, and you can like at moments you can hear him going like so funny. It was really funny. I think
I think all commentary should be like one interested person and the other and one guy that doesn't give a fuck about what the sport is. So when this thing was happening na in the audition part, तो जो मेरे साथ जो comic था, I won't name him, but he's also a big cricket fan. But I mean, they said कि do you watch IPL? So he said I watch cricket, and he was saying stuff like that. तो obviously मतलब मुझे पहले ही लग रहा था कि हाँ नहीं लेंगे हम. तो वो ऐसी बातें कर रहा था कि यार क्या है IPL थोड़ी देखते हैं. Why will they hire you if you say IPL नहीं देखते? Yeah. But UFC के लिए auditions हुए, this is surprising. मतलब लोग अरे भाई तो उनको ये भी चाहिए था ना कि तुमको पता है. अब मुझे पता है यार, मतलब I don't do सिर्फ कॉमेडी नहीं करता मैं. UFC में I actually do play by play. तो इसलिए it makes sense for them to audition, क्योंकि अभी उनको और दूसरी लैंग्वेजेस के भी चाहिए और मिल नहीं रहे कमेंटेटर, क्योंकि UFC कितने ही लोग फॉलो करते हैं. 12-13 फैंस होंगे इंडिया में. उनमें से 5 तो वो कर रहे हैं कमेंट्री, वो ऑडिशन कर रहे हैं. तो बाकी उठ नहीं पाते यार 5 बजे. मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया ठीक है देख के, बट मैं नहीं उठ सकता यार 5 बजे इसके लिए. मतलब मेरी फैमिली नहीं देखती. अभी आज जैसे अभी 10:30 बजे एक शो आने वाला है, द शो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, और कोई नहीं देखेगा क्योंकि मेरी मम्मी सो जाती है. Oh yeah, by the way, you should plug this. पता नहीं हम लोग क्या प्लग करेंगे. 25 लोग देख रहे हैं वैसे. But yeah, you have a show coming tonight, right? Like what is it? Is it like just a stand-up thing? Yeah, they've started a stand-up show. Amit Tandon is hosting it, and Jia Shankar, these are the hosts. And every episode they'll have 3 stand-up comics. तो वो बेसिकली स्टैंड अप शो ही बनाया है. हर दिन नए कॉमिक आएंगे और आधे घंटे का शो होगा, आई थिंक हर रात 10:30 बजे से 11. तो एंड मैं देखा, मतलब मैं जब शो शूट हो रहा था मैं देखा था, एंड आई फील लाइक इट विल बी अ टाइट शो, क्योंकि ज्यादा फ्लॉप की जगह है नहीं. तो अच्छा टीवी पे भी आएगा राइट? दिस इज नॉट जस्ट ऑन टीवी, दिस इज ऑन टीवी. सोनी सब, वो सब टीवी जो पहले था अभी सोनी सब हो गया. Okay, nice. Great. So by the way, also about I just want to come back to UFC a little bit. Have you ever also been interested in like MMA yourself or something? Like have you done a lot of that stuff? I'll do one amateur fight I'll do, and then if I win I retire, and if I lose then I don't tell anybody and I retire. That's my plan. This year I'll probably fight. Really? Are you serious? Yeah. Why do you think I'm working so hard to get fit? I don't need stand up में weight में mic का तो उठा ही लेता हूँ. I need to get fit for something else. Wow, ये देख comment. So we're getting some live chat also. I'll just Mr. Pink has said, "Hi, I saw you in Amazon show." So this is your audience. This is your audience, Shasha. Nice. Yeah. Nice. Thank you. Don't watch me on Amazon show. Watch me somewhere else. I'll put a YouTube video next month. Watch that. Also, by the way, you have been putting out a lot of shorts and a lot of that kind of, even on your podcast channel. But I just want to ask you, as a fan also, when can we expect another episode of the podcast, and why did you stop doing it? यार वो मतलब एक तो मैं अकेले करता हूँ. ठीक है, तो उसमें ये है कि एग्जॉस्ट हो जाता है. फिर मैं बोल दिया सारा, अब आज जितने भी थॉट आए थे सारे बोल दिए. कई बार तो ऐसा होता है कि ऑन स्पॉट जो सोच रहा हूँ, तो देन दैट बी अ बैड शो, राइट? तो एक दो बार मैंने किया ना, क्या है यार, लिखना तो लिख नहीं सकता, आई कांट प्रिपेयर फॉर समथिंग, वरना जॉब जैसा लगने लगता है. तो जब मुझे वापस मूड होगा तब कर दूंगा. यू आर अ फैन, देन वेट टिल आई फील लाइक डूइंग इट. But I'll do it sometime. I don't know if I should call the thing with guest is, I don't know how you guys work this out, but when you are calling a guest, then you have to be free that day. They have to be free the same day. वो चीजें sync होना चाहिए. फिर जैसे आज one of your guys is busy or whatever, उसका लाइट नहीं आ रही. बट ऐसा होगा ना, if there's a team, तो किसी की लाइट नहीं आएगी, किसी की मम्मी ने मना कर दिया, उसका मूड नहीं है, आज सर में दर्द है. एंड देन अगर ये 3 बार हो गया ना, 3 आइटरेशन ऐसी हो गई, तो देन आई क्विट. आई कांट डू इट बियॉन्ड दैट. अगर पहली बार में ही सब सही नहीं हो गया, तो देन आई कांट डू दैट वर्क. देयर इज अ रीजन व्हाई आई डोंट हैव अ जॉब. आई कांट वर्क हार्ड.
मुझे आराम से चाहिए सारा. No, I 100% agree with you on that. As a fellow Berozgar. As a fellow Berozgar, I also agree. Bharat, no. So then I used to work at Filter Copy and I wouldn't go to office. Everybody else would go to office. ये मुझे बताया. मैंने बताया था इसको. हाँ. So I would work from home. Yeah. हाँ, no, go ahead. No, so my wife also works. I used to work over there. Yeah. And she was a designer there. And she told when I because I used to listen to your podcast, and she told me that you did the smart, like you did the, I don't know if it was, I'm not claiming whether it was true or false. I'm just in admiration of whatever whatever happened. Which is, if you want to tell our audience what happened. Just I have a health issue, bro. I'm not kidding. This sounds shady, but it's not. I have a health issue. I can't go to work in an office setting. So I haven't worked in an office. When I was working for Being Indian also, जो Culture Machine, तब भी मैं दिल्ली में था और ये लोग यहाँ पे ऑफिस जाते थे, मैं अकेला दिल्ली में था. तो कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये इस कंपनी में काम करता है. जैसे यहाँ भी जब नए लोग आए थे तो फिर they had to bring me to introduce कि ये भी इस कंपनी में, because they didn't know. I wouldn't go to office. तो ये है. But you were sickly thin as well, so I'm guessing. I was thin. So I've always been thin. That was not the issue, but yeah, I had. मतलब he's trying to help you to prevent a future lawsuit. No. I talked this thing out before I take like a lead. I would tell the founders and everybody कि देखिए ये situation है, या तो I quit. है ना, कि मतलब मुझे कोई शौक, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज ऑफिस आऊंगा और काम करूंगा तभी काम होगा. मैं घर पे काम आराम से कर सकता हूँ. I never slacked. तो काम मेरा पूरा होता था. It's just that मैं बोल रहा हूँ या तो मुझे आप ऑफिस मत बुलाओ, मैं घर से काम कर सकता हूँ तो फिर मैं कर लूंगा, और या तो I'll quit. It's okay, I'll do something else. तो they are, if they are okay with my work, they'll be like हाँ तुम घर से कर. तो basically you were really ahead of your time. You should, because आपके लिए पैंडेमिक तब से चल रहा है, मतलब 6-7 साल से चल रहा है. So also a lot of your comedy I've noticed is also around health issues, which is मुझे अभी 1 महीने पहले कोविड हुआ था, and I remember मुझे किसी ने विटामिन सी की टैबलेट, and then I remembered your video, which I recommend everyone on Instagram should go check out on Shashwat's Instagram page. About how he consumed a lot of vitamin C tablets because they were Nimbu masala flavor, and dude, it's what he's saying is true. मैंने orange flavor लिया, it's too fucking tasty, man, and he got kidney stones because of it. This is the problem. I realize now why medicines are. Yeah. So they use these brands. I don't know if every brand does that, but the ones that I was eating, they had oxalate. वो होता है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट या किसी भी फॉर्म में ऑक्सलेट होता है. तो लिमिटिंग फैक्टर जो किडनी स्टोन का होता है वो ऑक्सलेट होता है, और उसके बाद बाकी आयन उससे जुड़ के देन कैल्शियम ऑक्सलेट या जो भी स्टोन होता है वो बन जाता है. बट अगर ऑक्सलेट आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो फिर आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं. और इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऑक्सलेट डालते हैं, तो तुम खाते जाओगे अगर तो बढ़ता रहेगा बॉडी में. प्लस मैं पानी भी. I'm not doubting Shashwat at all, but don't take any health advice in general from this channel. From no channel, not even. अगर डॉक्टर का भी चैनल है तो मत, असली डॉक्टर के पास जाओ, उसको पैसे देके बियर बाइसेप्स से ले सकते हो. बियर बाइसेप्स का तो धर्म बनता है यार, वो हमें एनलाइटन करने को ही है. I don't know how deep Shashwat wants to go into disc culture, but so we'll leave it at that. Yeah, but beer biceps I've heard is very weird. वो कुछ भी हर तरह का मोटिवेशन दे देता है. वो अलग जोन में जा रहा है अब उसके. तो earlier it used to be boyfriend girlfriend and like मुठ मत मारो ऐसा टाइप की चीजें होता था. I've seen one video जिसमें this guy is like कि अगर लड़की को पटाना है तो क्या क्या करना है और 6 स्टेप बता दिए. और वो बहुत ही गंदे थे. मैं मतलब शॉर्ट देखा, मैं ये क्या कह रहा है यार. But apparently he has a huge following, तो ठीक है, फिर ऐसे ही लोग बनते होंगे, कई सारे इकट्ठे हो जाएंगे. There is a comment I want to read. This is a comment by Shrey Khurana. He has said, "Hi Shashwat sir, I am a big fan. You are a great artist. Please share your joke writing process so that I can especially avoid that." Yeah, it's easy to avoid my joke writing process. मैं शार में या फिर कहीं मैं बाहर जा रहा होता हूँ, बाइक चला रहा होता हूँ, तो मुझे थॉट आता है और फिर मैं whatever I find funny I write, and I don't care if the audience likes it or not. I just keep doing it.
If I find something funny, I go with it, I run with it. Do you is that something that has come naturally to you, or is that something that you have over the years? Like, did you have these insecurities early in the career, or या पहले से ऐसा था कि मराने गया मेरे को जो फनी लगता है बोलूंगा? यार मतलब मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ, बाकी तो मैं जॉब करके कमा सकता हूँ पैसे. Why will I do this like thinking कि ये ऑडियंस को ये वाली चीज पसंद है तो इनको पैंडर करते हैं तो पैसे कमा लेंगे. अगर I don't really need so much money, थोड़े से हो जाता काम. Plus I want to do the thing that makes me laugh. That's the only plus side I see in comedy. क्योंकि मैं जब भी स्टैंड अप करने जाता हूँ या मैं कोई ओपन माइक भी करने जाता हूँ, तो अगर मुझे कोई चीज फनी लगती है मैं उसको जाके करता हूँ, और नया कोई थॉट होता है तो वो ट्राई करना इज द ओनली एक्साइटमेंट आई हैव. अदरवाइज पुराने जोक्स करने में कोई मजा नहीं है. वो तो मैं तो देख ही चुका हूँ करके, लोगों ने भी सुन रखा है, और मुझे तो हंसी आ गई थी पहली बार, तो मैं क्या बार बार सुना. तो for me it's always writing a new joke and then seeing if that works, and मतलब it's funny to me, obviously that's why I'm trying. But that Norm Macdonald did that, and that's the reason I loved him, क्योंकि वो मतलब he found like the joy in writing a new joke, or like creating funny stuff. चाहे कैसे भी हो, वो टॉक शो में जाता था और स्ट्रीट जोक्स करता रहता, उसकी स्टोरी बना के ले आएगा, कुछ भी बोलता रहेगा just to waste time so that he'll arrive at the punchline late. So just fuck with the people like that. वो मजा. Nice. By the way, there are more comments. Sheikh Khurana अभी थोड़े vibe में आ रहा है, तो I don't know if I should read the next comment, but उसको बहुत motivation मिल जाएगा life में, but I'll read it anyway. Shashwat sir, I was just kidding. I really like your sense of humor, which tells a lot about my sense of humor. But hey, I don't want to whine about my problems on a live stream. ये पता है, so I'll tell you, we have started on this channel. Whenever we do a live stream now, people have to subscribe if they want to write in the live chat. So I'm just very happy that Shrey has subscribed to write this. So who has won this conversation anyway? I think Shrey has still. What stops Shrey from unsubscribing right now? वो कर सकता है, पर फिर रिप्लाई नहीं कर पाएगा, और उसको सब्सक्राइब करने के बाद 5 मिनट रुकना पड़ेगा. देख मेरे एल्गोरिथम में तो वो बम्प हो जाएगा ना एक सेकंड. भाई अभी मतलब कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो इस पर ही जीते ना, मतलब थोड़ा सा बम्प मिल जाए 1% का. यार ये मिस्टर पिंक का बाय द वे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. ये तो हमने बात कर, बट नहीं है. हाँ, did the wave of comedy collectives like AIB, EIC, SNG fade away? Why not younger comedians make these nowadays? बताओ भाई. Younger comedian. मैं 32 years old. Younger comedian. But यार क्या हो जाएगा, अकेले ही हो जाता है. कॉमेडी कलेक्टिव का उस समय टाइम था शायद, उस समय वीडियोस यूट्यूब पे शायद वायरल नहीं हो पा रहे थे, और तुम एक ग्रुप जिसका कंटेंट है वहां पे लोग ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए साथ में बनाने का कोई पॉइंट था कि एक EIC बना दिया तो उसी पे अजीम के भी वीडियो आ रहे हैं, उसी पे अंगद के भी आ रहे हैं, तो दैट हेल्प्स ईच अदर. बट अभी तो यार मतलब तुम अब आज अगर मैं स्टैंड अप वीडियो डाल दूं नए चैनल पे तो उस पर भी आ जाते हैं व्यूज. यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा है और इतना सारा स्टैंड अप है, तो यू डोंट रियली नीड अ कलेक्टिव. व्हाई एल्स वुड यू नीड अ कलेक्टिव इफ नॉट टू हेल्प यू गेट सीन एक्सपोजर. अगर ना मिले तो क्या पॉइंट. That's true. Also, oh yeah, another comment I'll just read out. Omkar has asked thoughts on reaction videos. अभी सारे whether it's content or sports, most of Indian comics वही करने लगे. So do you have any opinion or not? मतलब मुझे लगता है जो रिएक्शन वीडियो में तुम बोल रहे हो उसको तुम कमेंट में लिख भी सकते हो, उसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है अलग से. तुम वीडियो देख के बोल रहे हो ये बहुत सही है तो लिख दो नीचे बहुत सही है. why do I want have to see a piece of content through your eyes? मतलब तुम इतने स्पेशल नहीं. It's okay. ये I don't know because YouTube culture में मैं भी बहुत ज्यादा YouTube culture मतलब if you're बेरोजगार again you tend to go very deep into that as I am. So back in the day, I'm talking 2016 or something, तभी शुरू हुए थे reaction videos जब गोरे लोग करते थे. White people used to do trailer reactions. And have you Shashwat, have you been down the rabbit hole of the industrial complex? The reaction industrial complex of white people talking about Indian stuff. Because they've realized कि यहाँ पे इतनी ऑडियंस है, तो now I saw वीडियो जिसमें एक वॉइस कोच है और वो
I think you guys should search this also. Voice coach है कोई बंदा और वो सोनू निगम या अरिजीत सिंह का गाना सुन के रो रहा है भाई. और वो हर मुर्की पे हर उस पे रिएक्शन दे रहा है. Oh my God, how can he do this? And he's crying and he's explaining his emotions. और भाई मैंने कहा ये कैसे देख रहे हैं लोग. And then I scroll down to see the views. भाई millions हैं. कौन लोग हैं, कौन देख रहा है. And all positive comments कि I love you Andrew. Oh my God, you through your eyes and through your words I could appreciate this music more. यार ये मतलब I think at some point somebody, I think Jabi Koye was the pioneer of this, which is उसने एक दिन realize किया कि इंडिया में बहुत सारी मूवी बनती है और इंडिया में बहुत सारी फेयरनेस क्रीम भी बिकती है. ठीक है, तो इन दोनों फैक्ट्स को साथ रखते हुए साथ में रख के अगर कोई कंबाइन करे तो क्या क्या हो सकता है. मतलब do you, is there any kind of, okay, let me put it this way, is there any kind of content on YouTube that you look down upon? Is there any? Most of it. No, but like, what do you look down upon the most in terms of something that is trending these days or even in the past? यार अभी the cringiest stuff is this कि कुछ मूवी का कुछ out of context कुछ लेके and they start making memes और वो memes हमेशा एक soft porn type memes होती हैं जिसमें मतलब कुछ होगा. I'll tell you what कि कोई मतलब ऐसा scene होगा जिसमें it's going in the direction of sex and then suddenly एक ऐसे बोले ओ भाई and then ऐसे वाले बहुत सारे हैं. हाँ बहुत सारे यार. और एक मतलब उसमें कॉमिक्स के भी वीडियोस की क्लिप्स डाल दिए तो वो मुझे और हर्ट करता है कि वो ऐसा दिखाया लड़की ने कुछ बोला and then cut to जाकिर खान. ओ ये ऑसम है ना यार. मतलब ये क्या हो रहा है यार. मतलब इतना ज्यादा गंदा कंटेंट एंड यू आर जस्ट रूइनिंग द स्टैंड अप बिट आल्सो. एक उसका है ना उपमन्यु का बड़ा कॉमन होता है. क्या बोला तो अब क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? नहीं और क्या बोला ये भी एक है फालतू. हेरा फेरी का तो देयर वाज अ होल फेज नो लाइक 2-3 months that passed by rather slowly, which was जब भी लोगों ने somebody figured out that अगर आप हेरा फेरी को पूरी फिल्म हर फ्रेम लो, हर फ्रेम मीम है. Every frame is a meme basically. Yeah, but that was good. वो एक चैनल था जिसने हर फ्रेम पे मीम बनाया. Daily हेरा फेरी. Yeah, daily. Which is, you know, let's talk about Hera Fairy actually, because I feel like if Hera Fairy comes up, you have to talk about it. I honest, you know, a lot of people like, you know, because हम लोग थोड़े से लिबरल टाइप के लोग, राइट. सो हम लोग कंज्यूम भी ऐसे थोड़ा स्मार्ट कंटेंट. उसमें जितने भी लोग होते हैं लोग हमेशा बोलते हैं कि यार लास्ट फनी फिल्म कोई बनी थी इंडिया में तो जाने भी तैयार होती. आई डिसएग्री first of all. Okay, have you heard a lot of people say like a lot of the oldies, not just the oldies, it's like, but no, I disagree. अंदाज अपना है, but like Hera Fairy तो is like undisputed in my opinion. Yeah. Is there a funnier film than Hera Fairy you can think of? Yeah, Golmaal was pretty funny. नहीं. अरे यार, I remember jokes from like when I watch a movie, if there's a joke that stands out, तो मॉम मूवी का एक जोक मुझे बहुत पसंद जो मैं सबको सुनाता हूँ. कौन सी मूवी? मॉम, जो श्रीदेवी और नवाज वाली मूवी. वो तो बड़ी सीरियस फिल्म थी यार. सीरियस फिल्म थी. तो उसमें एक जोक था जो मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें श्रीदेवी ऐसे चल के आ रही है और नवाजुद्दीन एक खंडहर टाइप का है, पुरानी मॉन्यूमेंट है, उसमें ऐसे टहलते हुए गाना गा रहे हैं. तो श्रीदेवी कहती है अच्छा तो वो कहती है कि आप तो अच्छा गाते हैं. तो कहती है हाँ, मैं भी अपनी मम्मी की तरह सिंगर बनना चाहता हूँ. तो कहती है अच्छा, आपकी माँ सिंगर थी? कहता नहीं, वो भी बनना चाहती थी. I remember this joke like every few days. I'm like यार ये क्या joke है यार, कितना अच्छा है. बहुत ही पसंद. And a lot of Shashwats, which I was mentioning earlier on your Twitter timeline, a lot of your one-liners also have like a similar style. Sorry if I butcher this, okay, but मैं भरत को बता रहा था, which I cracked up at this joke I think for a good 10 minutes. I was just laughing. Okay, और मैंने सुबह देखी है तो I like, it was a very cackle kind of laugh I had, which was मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका एक हाथ नहीं था, उसके 2 हाथ थे, which made me lose my shit at 6 o'clock in the morning. It was amazing. मुझे ऐसे गुफी जोक ही पसंद है. तो पता है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्या लेम जोक लिख रहे हो है ना, और मतलब you know stand up करो ना, ये सब क्या लिख रहे हो. I find this funny, though I just keep writing stuff like that. I laugh at that.
You have a North Korea series ना अभी. Oh yeah, not I'm so obsessed with North Korea. People don't realize मैं कितना research. तो मैं basically ना उनकी website भी download कर ली थी जब ये दिल्ली में था. तो they had a website जो वो अपना propaganda website जो दिखाते हैं अपने जनता को, और वो किसी ने GitHub पे डाल दी थी पूरी वेबसाइट. तो you could download the whole thing. So I downloaded. तो I had their website. उसमें सारे videos हैं, propaganda videos हैं. वो दिखाते हैं कि वो ओलंपिक में सारे मेडल जीत गए वो लोग, हर साल जीतते जा रहे हैं. तो वो सब दिखाते हैं. इट्स वेरी फनी. But now I've lost it, मेरी हार्ड डिस्क टूट गई. But I am sure a lot of people have that website because GitHub में किसी ने आराम खोरी करके डाल दिया. By the way, now that you mention international relations, I want to because you're here, I'm like going to do some more sucking up. Okay, which is again I would like to, because मैंने शुरू में बोला था अभी 30 लोग देख रहे हैं. First of all, like the stream and subscribe. Don't be, because I know more people have come today because of Shashwat. Yeah. So please subscribe करके आना, कुछ देख के जाना वापस, ठीक है? और so I will say this, that the Shashwat's podcast Number One Bullshit is something everyone should check out. I was also amazed, Bharat, to see it somehow has lesser subscribers than us. इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? मतलब I just feel वो तो अभी बड़े हैं, पता है, अभी बड़े हैं, वरना ये 600 700 something. So in that podcast there is an episode where Shashwat talks about, and I want to ask you about this, whether this is true, where he talks about how one day he was free, so he applied to Mossad. Yeah. Okay. Tell me about that. Was that did you really do that? Yeah, I did that. तो अभी तो I've written a joke also, a bit about it also. But मतलब मैं ऐसे देख रहा था यार, I was very interested. मैं पौधा देखा और मैंने बहुत सारे ऐसे shows देखे. I'm very interested in crime, है ना. तो मैं कहा यार देखते हैं कि इनकी वेबसाइट है कि नहीं. तो उनकी वेबसाइट है और उसमें भाई अप्लाई वाला बटन भी है. मैंने कहा क्या ये कैसी सीक्रेट एजेंसी है जो अप्लाई करने के लिए दे रही है, वहाँ की तो वेबसाइट नहीं मिलती. मैंने कहा बड़े बेवकूफ लोग हैं यार. एंड देन आई सर्च FBI, CIA, एवरीथिंग एज अ वेबसाइट एंड यू कैन अप्लाई. So you can put, obviously they didn't reply, मतलब मैंने resume क्या डाला, stand up comic का resume थोड़ी, but they needed some like copy editor. Yeah. और dude they needed engineers, software developers, ये सब था. But also Mossad needs तुम्हारा कि तुम्हारा इजरायली पासपोर्ट नंबर हो, इजरायली नेशनल नंबर है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं. तो मैंने गूगल पे ढूंढा और बढ़िया सा कुछ डाल दिया किसी बंदे का इजरायली नंबर, और ऐसी वैसी. मुझे क्या फर्क पड़ा अप्लाई करने का, क्योंकि वो फील्ड जब तक भरेगी नहीं तो अप्लाई नहीं. भाई कोई बंदा, there's some guy who's getting surveilled because of you. But I took somebody's passport number, Israeli number, and I submitted. तो मेरा सबमिट हो गया था. CIA में भी मैंने सबमिट किया है. और मैंने एक जगह किया था, एक बहुत ही फनी था. जापान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक था, जिसमें जापान के जंगल में तुमको जाके एंड यू हैव टू बी एन ऑफिसर देयर, और उसमें मैंने अप्लाई कर दिया पूरा ट्रांसलेट करके और अंदाज से कि इसमें ये मांग रहे होंगे, और भर दिया पूरा फॉर्म. आई रियली एंजॉय दिस स्टफ. ये वो लोगन पॉल के सीन के बाद हुआ था क्या? Did you get interested in Japanese forests after Logan Paul ने लाइव स्ट्रीम कर दिया था ना? वो मुझे पता है कि उसने एक डेड बॉडी दिखा दी थी. हाँ, in the forest. हाँ, तो ऐसा. But anyway, ऐसे ही और बहुत सारे और jokes on the Number One Bullshit podcast, so please check that out. Meanwhile, we've got another comment, which is एक observation है, live stream में जो personality बाहर आती है stand up comics की, it is way funnier and relatable than stand up shows. Again, case in point. Anyway, I don't want to take names of comics. Do you think that is a positive or negative commentary? Horribly negative. What is this? मैं वहाँ पे मैं jokes कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बातें कर रहा हूँ. अगर तुमको ये ज़्यादा funny लग रहा है तो धिक्कार है मेरे. Very very sad. Yeah, dude, like you're going to Powai for a joke, like you're going to do like a set and shit, and like somebody is telling you कि यार आप घर पे जो कर रहे हो ना, जो ऐसे time pass में जो आप live मेरे comments पढ़ रहे हो, वही करो, वो best है. मतलब that's so. इसीलिए streaming इतना चल रहा है. Like all the comics doing streaming, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि उनको stand up से ज़्यादा ये सब पसंद है कि कोई OP लिखते हैं क्या. यार मुझे भी थोड़ा audience से थोड़ा ये है. Saksham Kumar has commented, I feel like a lot of people here haven't been to stand-up shows, because somebody has said, my God, I feel like I'm watching a live stand-up show. Great. तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि please attend live stand-up shows also. Please don't attend only open mics. Open mics मत करो. मैंने पता है, by the way, मैंने try किए थे open mics. मैं दो तीन क्या, मैंने actually 7-8 open mics किए थे. फिर मैंने अपना फिर thank you कर दिया उसके बाद, क्योंकि like you know, you have very, I think personally, like you have a very weird idea of comedy,
before you enter, because everything you think is funny is not when you go in front of an audience and you say that shit and they don't laugh. And it's really funny to me, at least, and it was in that moment. But when you look, जो वो second hand embarrassment होता है ना, वो थोड़ा वो did you have a long time getting over something like that, or were you someone who from the get-go had like a little bit of positive reaction from the audience? No, the first open mic was very bad. Second was good. That's मैंने same एक ही शो एक शो किया था, वो बहुत बुरा था, पहला वाला वो दिल्ली में किया था, और अगले दिन एक और ओपन माइक था, वो किया था, वो अच्छा था. तो उसके बाद से फिर मैं करता. अगर दूसरा वाला भी बेकार होता तो शायद मैं तीसरा ट्राई भी नहीं करता एक्चुअली. मैं अभी बोल रहा हूँ would have tried. Also, I want to ask you about your opinion on comedians writing shows, fiction shows. Are you also into something like that? Are you developing something like that? Developing मतलब कोई खरीदे तब. But yeah, I've written something. I've written वो क्रिएट करते हैं ना, जो क्या कहते हैं उसको, डेक, बाइबल. वो मैं बना के रखा हुआ है. तो मैं जब भी कोई लेगा, बट अभी पता है हो ये रहा है कि इफ यू आर पॉपुलर देन दे वांट टू सी इट. तो अगर तुम पॉपुलर नहीं हो तो फिर तुमने अच्छा लिखा होगा तब भी नहीं लेंगे, अगर पॉपुलर हो तो बुरा लिखा होगा तब भी वो देखना तो चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे. तो आई थिंक पॉपुलैरिटी पहले ले लेते हैं, उसके बाद ये सब देखेंगे. बट दिस आई हैव सीन विद इंडियन कॉमिक्स कि जब उनके शोज आते तो दे आर, मतलब ऐसा है कि उनको कॉमेडी के अलावा बाकी कुछ बोलना है. लाइक हाउ लाखों में एक इज नॉट अ कॉमेडी एट ऑल, सीजन 1 and 2. Then अफसोस करके आया था, which is, but I'll tell you my favorite one of Pushpa Wali. I really liked. Yeah, I really like. When it started, I didn't like it that much, but it punches you, man. Like it's like a gut kick. It was really good. Yeah. Also, I also started this podcast with Bharat and our other friend, जिसके घर पे बिजली नहीं है आज. So this is Assam government's problem. Please fucking fix this shit. But उनके पास और problems है actually. हमारे live stream को cater करने से ज़्यादा. But मैंने ये भी बहुत ही खुन्नस में start किया, क्योंकि because both of us are writers. We write fiction stuff and all that. So comedians हमारे पेट पे लात मारे जा रहे हैं by making shows. तो मैं सोचा हम लोग भी थोड़ा podcast करके हम भी थोड़ा उनकी market share खाने की कोशिश करें. So thank you for helping us out with that. But is yours a comedy show? Or is it a... Yeah, it's a comedy show. I can't write other stuff. मतलब फिर point मुझे funny ही करना है. मैं even if I'm writing a thriller, जैसे जो एक story मैंने लिखी थी वो thriller थी, पर मतलब वो funny थी, पूरे में jokes ही थे. I just want to tell my jokes in like different forms. That's right. So I'm assuming that's also why you, like you said, your podcast, why you put it on pause, because उसमें सारा material would end up. Material से भी ज़्यादा मतलब फिर अगर मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जिस पे मुझे stand up बन सकता है, तो फिर then why do I tell it in a podcast? वो बेकार ही हो जाए. और plus अकेले करने में थोड़ा सा exhaustion हो जाता है. तो I do it for a few days. फिर जब मेरी energy चली जाएगी मैं बंद कर देता हूँ. तो ऐसे ही बीच-बीच में spurts में काम कर सकता हूँ. Acha, so a slightly serious topic, which is obviously it has affected it pretty badly, but the pandemic and stand-up, are you seeing a revival, or are the clubs that, because I've actually attended a few of your shows, by the way. Like I think we met also once at one of them, and I really like Shashwat's comedy. I attended one which was online also. Yeah. And it's fucking hilarious. I think you guys should definitely check that stuff out. I mean, honestly, if anyone who's been to any stand-up show, live and YouTube, it's not even comparable, like to watch stuff like that. So, but how is the industry responding to the pandemic now? Are the venues in threat, or are they managing to stay open? What is the scene right now? No, they are going under, man. A lot of venues can't sustain क्योंकि rent पे लेते हैं ना. तो अगर rented है, then you have to pay the rent every month, but you're not recovering anything. So those people are definitely under a lot of pressure, and उसकी वजह से बॉम्बे में भी कई सारे venues have gone, Delhi में a few venues have gone, but then they reappear. जैसे ही वापस शुरू होता है तो they'll talk to somebody जिसका dance studio है, because everybody wants to do business. और अगर कोई restaurant है जिसमें उनको open
mic night करनी है, comedy night करनी है, तो these are the associations that will help comics. But the venues that sustain or that stay are the ones जो owned हैं, जैसे Habitat. Habitat is owned by that guy, so that will never go. तो उस तरह के venues हैं वो बच जाएंगे. But Laugh Club जो हमारा था, Canvas Laugh Club, that is the biggest venue in the country. That has gone because उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिए थे, तो मतलब कुछ इशू चल रहा था काफी लंबा. भाई वो 2011 में I must say something about their strategy also. वो 2011 में 750 रुपए चार्ज करता था शो का. Oh yeah. And people, हाँ. But that was also in lower parade. So maybe me talking and me sitting in Andheri and saying that should not be should not but if you think about it, अंदर वो खाना वाना भी बेचते थे और बियर का उनको नहीं मिला था, तो अल्कोहल लाइसेंस नहीं मिला था, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी. वरना they could have easily recovered the money because people when they watch it. हाँ. Even that comedy club in Bandra, I mean being Bombay specific, but yeah, that's also really but yeah, hope all this shit passes by soon. But abhi to yahi chalu. But anyway, more comments coming in. Vikas Ingale has said, "Bhai, favorite dark comedy films ki recommendations bhi le lena." Not just dark comedy, but any comedy recommendations or anything. Recommendations to hum log pe aa jayenge. But your what are your favorite comedy films? Because we are primarily a film channel, so. Comedy films. यार मतलब मैं शो बताऊं क्या? हाँ जैसे भी शो फिल्म जो भी. एक शो है बैरी हॉटस्टार पे, बिल हेडर. Very very good. अगर आप मतलब it's funny but it's also if you are interested in like a thriller or whatever, it's crime show but very funny also at times, very intriguing. Dark comedy movie or show whatever. मैं सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली सब देख लेता हूँ पर मुझे याद नहीं रहता कि जॉनर कौन सा. तो देख तो मैंने बहुत सारी रखी होंगी. जाने भी तो यारो क्या है, डार्क कॉमेडी. हाँ डार्क कॉमेडी है. वैसी 80s के हिसाब से कह सकते हैं. हाँ नहीं मतलब अभी भी अगर मैं देखूं तो अच्छी है यार. उस समय मतलब जाने भी तो यारों में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो अभी की मूवी नहीं है. मे बी कैमरा की क्वालिटी की वजह से लगता हो. वो क्वालिटी हाँ वो तो है. कुछ अलग है, वो थोड़ा सा ग्रेनी सा लगता है तो मजा आता है यार. ये थोड़ा इंट्रीगिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा पूरा. तो सिनेमा लगता है ना थोड़ा. आप सिनेमा नहीं लगता. नेटफ्लिक्स में जब से चीजें आई हैं तब से सिनेमा कुछ नहीं बचा. नेटफ्लिक्स ने इतनी घटिया प्रोग्रामिंग करी है इस देश में ना इन्होंने, और उसके बाद दे आर अज्यूमिंग कि अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, तुम रोज रहे हो. इतना गंदा. एक मैंने शो देख लिया था, पता है क्या कर रहे हैं ये लोग. दे सपोज दे गो टू अ थिएटर एंड दे सी अ प्ले एंड दे लाइक हाँ इसको अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूं they put it on Netflix as original and people like what the fuck is this is so bad. तो obviously वही होगा. ऐसे बहुत सारे plays को they've converted into movies. They're horrible. Fuck. Yeah. Can you imagine that Sony Live had a bigger hit than Netflix? Yeah. Before Netflix. What the fuck? How is that possible? And Netflix, by the way, rejected that show. Scam? Yeah. Are you serious? Oh, scam. Yeah. Matlab. There was another show that I liked on Sony Live. True Story. No. What was that? Andekhi? नहीं वो जी पर था. सोनी लिव पे और कौन से अच्छे हैं यार? एक था जिसमें वो बंदा गलती से उसको असैसिन समझ लेते हैं. वो जाता है एक जगह पैसे मांगने फॉर हिज स्टार्टअप और उसको कहते हैं कि हाँ तुम इस बंदे को जाके मार के आ जाओ. गन पकड़ा देते हैं. ये इंडियन शो है क्या? या इट्स वेरी गुड डूड. ये सोनी लिव पे बहुत अच्छा लगा था. I have not heard of this. Yeah, maybe I am completely forgetting. Tabbar? नहीं Tabbar is not. Tabbar तो बहुत सीरियस है. a real story, a true story. इस तरह का अजीब सा नाम है एक, but very good show. उसमें ये है क्या मोहम्मद जीशान? हाँ. A Simple Murder. Simple Murder. Yes. A Simple Murder. अच्छा. I really like it. Hey, by the way, have you seen Dave? The show Dave? नहीं. Do you know the rapper Little Dicky? No. Acha, so okay, so for audience also and for Shashwat, check out Little Dicky. He's like a pretty good rapper. He's like a new age comedy rapper. So if you see his videos and stuff, they're like, he has a very famous video called Pillow Talking, which is just him. The entire song, it's like a rap song. It's him
and a girl who they've just hooked up, and it's just their conversation for 10 minutes. Very funny. And yeah, and he has a show called Dave on Hotstar, which is also pretty funny, so you should check that out. I think you will enjoy that. It's similar to Barry in like the in style. Simple murder low comedy. Netflix is a scam, Mr. Ping. ये थोड़ा extreme opinion आ गया यहाँ पर. क्या? Netflix is a scam. Yeah, in India definitely, dude. Very bad programming in India. भाई वो लोग 199 रुपए पे ले आए, ठीक है अपना, फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, मतलब. हाँ. अभी इसने कंपेयर किया था ना कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन इंडिया, तो आई थिंक Amazon प्राइम के 19 मिलियन है और इनके 4.5 मिलियन है, तो दे आर गेटिंग बीट हॉरिबली. इट्स नॉट इवन क्लोज. भाई इनके 93 से कम सब्सक्राइबर है. और 93 उनके चैनल के लिए रिएक्ट भी करते हैं. सोच कितना भी उनको हेल्प कर लो, उनसे नहीं होता. अरे Faris Shafi you should listen to if somebody wants to listen to rap. I think हाँ मैंने सुना है ना, वो उसका एक गाना है ना बड़ा फनी सा, इंट्रोडक्शन वाला. इंट्रोडक्शन ऐसा से कम तरीकी मिस वाले बन चुकी थी Alfredo Fettuccini. You should. I haven't heard it. Yeah, it's good. Faris. Is he Indian? Pakistani? Pakistani. But वो मीशा शफी का छोटा भाई है. वो मीशा शफी पता है? हाँ मीशा शफी जिसने मीटू किया था इस पे. हाँ, अली जफर पे. करेक्ट, अली जफर पे. हाँ मतलब उसकी और भी पहचान है वो, मतलब कोक स्टूडियो में वो यार कोक स्टूडियो में जुगनी वाला गाना, उसमें जो लंबी लड़की होती है. भाई कोक स्टूडियो जुगनी वाले गाने के दम पे तो चला है इतने, मतलब सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं भी इंक्लूडिंग में, हमने वही सुन के अपना. अच्छा मेरे को ये सवाल पूछना था. आई थिंक आई एम श्योर आदित्य आल्सो वांट्स टू नो, बट एंड आई एम श्योर यू माइट हैव बीन आस्क्ड दिस, बट जो इंडिया में पॉलिटिकल सीन चल रहा है हाँ काफी स्क्रॉल डॉट इन जानना चाहता है कि व्हाट इज, मतलब डू यू थिंक द कम्युनिटी अगर है तो कॉमिक का कोई कम्युनिटी शुड स्टैंड अप, या फिर मतलब दिस इज कमिंग आउट बैड, बट नहीं गो ऑन, यू आर डूइंग वेल. आप में भी थोड़ी जर्नलिज्म मेरे को पता नहीं था है. थोड़ा स्नैप कर दोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. नहीं बट लाइक सो यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट डू यू थिंक कि आजकल लाइक कॉमेडी और इनहेरेंटली पॉलिटिकल हो गई है, एंड इज देयर अ स्टैंड टू बी टेकन? नहीं यार, यू कैन टेक अ स्टैंड बट यू शुड नो योर ऑडियंस. अगर तुम सिंपल शब्दों में कोई चीज बोलोगे और जिनके अगेंस्ट तुम बोल रहे हो उनको समझ में आ जाएगा तो मारेंगे ना. यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू लाइक डाइवर्ट इट इन सच अ वे और लेयर इट इन सच अ वे कि जिनको समझना है बस वही समझे और जिनका मजाक उड़ रहा है उनको ना समझ आए. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट. जो पॉलिटिकल हो रहे हैं उन्होंने बोली है एक बात, लेकिन ऐसे बोली है कि वहां तक नहीं पहुंची है, क्योंकि एक तो इंग्लिश में बोल दी, दूसरा थोड़ा सा लेयर कर दिया, तो बस बच गए. ज्यादातर लोग जो पीटने वाले तो उनको समझ ही नहीं आई. तो इट्स ओके. बाय द वे आई वुड जस्ट लाइक टू रेकमेंड एवरीवन टू वॉच. मैंने कल रात को ही देखा एक्चुअली. कुणाल कामरा डिड एन इंटरव्यू with Akash Banerjee, who runs that Deshbhakt YouTube channel. I'm not a big fan of Akash Banerjee, like uska, anyway, but that's different. But he had, so in that 1 hour long interview, you know, Kamra talks about his the experience of that whole experience of when he apprehended Arnab or whatever, like how when he approached him, and it's damn funny. And he talks about at one point he told him कि like he said कि मैंने कैमरा बंद करने के बाद ये सब बोला उसको कि तू you're lucky कि तू मेरे को इधर मिल गया, इधर रास्ते में मिलता. I thought that was fucking complete agreement with him. But yeah, nice one Bharat, nice, good one. But yeah, उसके साथ ही क्वेश्चन आया, is कुणाल कामरा a comedy? क्योंकि he is comedy. Yeah, he's a different genre of comedy. Yeah, a different genre. But do you think Kamra has made the rest of your lives better or worse? Because I don't think or no change like to the industry, because you know after I do feel like there was a moment, because you know Kunal Kamra ka jo stand up clips the, those were being shared on like my parents' WhatsApp groups. Yeah, which is a big deal. Yeah. Which is weird, right? So what do you think about all of that? That aspect of it? I think it would have helped all other comics. Attention मिला, फिर लोग बाकी comics को discover कर रहे होंगे.
किसी भी तरह का अगर अटेंशन मिलेगा एक आर्ट फॉर्म को तो लोग बाकी लोगों को देखेंगे. द पीपल हु आर वाचिंग कुणाल कामरा दे जनरली वोंट वॉच अदर कॉमिक्स, बट नाउ बिकॉज ऑफ हिम मे बी दे आर लुकिंग एट अदर कॉमिक्स आल्सो. कुछ ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमको क्या मतलब फालतू जोक से या बकवास से, हमको तो काम की बात देखनी, सब्सटेंस. अगर तुम एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बोल रहे हो या पावर के अगेंस्ट तुम बात कर रहे हो, डिसेंट ला रहे हो, तो हमको वही देखना है. तो उनके ग्रुप में भी एक दो लोग होंगे बोलेंगे थोड़ा चुटकुले भी सुन लेते हैं, तो फिर देन आई थिंक न्यू ऑडियंस वुड आल्सो बी यूज्ड टू दैट. वो ब्रिज है. आई जेन्युइनली एग्री कि कुणाल कामरा हैज बिकम दैट ब्रिज. Yeah, that's true. By the way, Mr. Pinger said something damn funny, which is Bharat Misra is the encyclopedia of Me Too. That's true. Fucking every episode you discover, you point out somebody who has been Me Too, who's been Me Too, or who has, जैसे तूने अभी किसी को इंट्रोड्यूस ही ऐसे कर दिया. So this is काफी sensitivity की काफी हदें हम लोग पार कर रहे हैं. But yeah. What do you have to say about Tanushree Datta? Let me turn the tables here. How do you think she should go about her career now that Nana Patekar has blessed her? What should she do now? Did you guys see that fucked up headline that became like a meme also a little bit? So after that, this is so fucked up. I can't even. This is on a mainstream news channel. I don't know. आज तक क्या ABP ऐसा ही कुछ रहेगा भाई वो. तो there was after she accused him. I don't know if we should laugh at this or not. इसका hate मिलेगा, but the headline of that was Omenu Candy Nana, which is that song. That's very funny. That's really funny. That's objectively funny and objectively fucked up. Very, very funny. Agar, by the way, anyone watching who's offended by this, you are right. First of all, yeah. You know, जब ये हुआ था ना तो मैं ऐसे ऑटो में जा रहा था, तो मैं ऑटो वाले से बोला कि ऐसा हो गया, तो कह रहे यार नाना पाटेकर तो बहुत बढ़िया, उन्होंने तुमको पाव भाजी खिलाई थी. क्या रहा वो लड़की और किसी को पाव भाजी खिला दी. इसे एक लड़की झूठ बोल रही होगी, नाना तो बहुत बढ़िया, हम उनके घर गए थे, पास में बैठाया उन्होंने, इतने अच्छे से बात करते हैं. There is an interview of Akash Banerjee की बात क्यों कर रहे हो तुम लोग? 2-3 कमेंट आ गए उसके बारे में. भाई तूने डिस कर दिया ना उसको. मैंने डिस नहीं किया उसको. मैंने उसको डिस नहीं किया. It's just that okay, now that people are asking, I just feel like उसके ओपिनियंस बहुत ही बेसिक है. मतलब वो कुछ ऑफर नहीं कर. He doesn't bring anything to the table except for जो मेरे को मालूम है ऑलरेडी. So और यू ना, तुझे ज्यादा नॉलेज. अरे नहीं, बहुत सारे लोग उतना नहीं. अरे वो क्या, वो नॉर्मली बोलता है. वो एक बार कोई देख के देखो उसको, वो मैं जनरली बता रहा हूँ, वो उतना कुछ वो नहीं है. But see, even when he is dissing, he is telling people to watch Akash Banerjee. That's the kind of person he is. Yeah, that's true. See, this is positive reinforcement on YouTube. ये चलते रहना चाहिए. जाओ देखो जाके. और अगर तुम देखो जाके कमेंट करना डिस्कंटेंट ने भेजा, और कोई पूछेगा कौन डिस्कंटेंट, तो फिर यहाँ पर भेजना होगा लिंक के साथ. 38 people are watching. 38 people are watching. This is perhaps one of our largest turnouts. Who are the last 5 people who have just joined? क्या करने आए आप? खत्म होने वाला है, क्या है? खत्म होने वाला है अभी. But no, before we do conclude, we normally do recommendations. Yeah. So it can be anything. It can be YouTube channels, books, movies, podcasts, anything that you would like to recommend for our viewers and listeners. Many things. एक बुक है जो तुम्हारी मेमोरी बढ़ा देगी 3x 3 folds मेमोरी बढ़ा देगी. जस्ट सर्च मिल जाएगा आई थिंक, है ना. वो उसका नाम नहीं पता मुझे, अभी मैं पढ़ी, नाम याद नहीं आ रहा. उससे मेमोरी 3 फोल्ड हो जाती है. ठीक है. एक चैनल है द स्लिंग शॉट चैनल. ठीक है. एक रशियन बंदा है, वो अपने घर के सामान से ऐसे स्लिंग शॉट बनाता है, वेपन्स बनाता है. बहुत मस्त है भाई, वो ट्राई करो, बहुत मजा आएगा. रशियन में भी बोलता है और एक इंग्लिश में भी है उसका. तो वो वाला देखना. You're not doing much to help turn UP stereotype by recommending a weapon creation channel. I love weapons, dude. So मैंने कौन सी गन चलाई है? मैंने AK-47 नहीं चलाई, मेरी बहन ने चलाई थी, लेकिन मैंने बाकी छोटी वाली सारी चलाई. आपकी बहन का नाम क्या है? बहन का नाम तो मेरे मामा वहां पे लेके गए थे, पुलिस अकेडमी में, ट्रेनिंग अकेडमी. वहां पे हम लोग चला रहे, बहुत मजा आया. तो मैंने वो चलाई है, शॉटगन चलाई है.
ओह, मस्त झटका लगता उसमें सच में वो ऐसा Recoil. बहुत ज्यादा रिकॉइल होता है है, क्या? रिकॉइल बहुत ज्यादा होता है। हाँ। AK-47 में और ज्यादा होता है, बट दीज गाइज वर यंग, तो पीछे कमांडो पकड़े हुए थे, तो उसको क्या है, शोल्डर पे रखना होता है, प्रेस करना पड़ता है, व्हेन इट रिकॉइल्स विल पुश यू बैक। बट वो बाकी सब में भी होता है, जो बड़ी गन्स हैं उनमें होता है, ऑटोमेटिक राइफल्स। तो रिकमेंडेशन हो गया, अब तू रिकमेंडेशन दे। अच्छा हो गए ये। मैंने क्या बताया? हाँ, एक बुक जिसका नाम और एक अगर आपको हथियार बनाने का शौक है तो द स्लिंगशॉट चैनल। स्लिंगशॉट चैनल अच्छा है। एक्सप्लोजम एंटरटेनमेंट, अगर आपको साइनाइड एंड हैप्पीनेस पसंद है तो वो बहुत अच्छे बनाते हैं एनिमेशन। और मैं फारिश शफी, गो वॉच फारिश शफी, इज अमेजिंग आर्टिस्ट। वो भी अगेन क्रिमिनली अंडररेटेड पीपल, नो क्रिमिनली अंडररेटेड पीपल, तो मैं जानता हूँ उसको। बहुत ही अच्छा उसका रैप है। मैं बहुत ज्यादा रैप फॉलो नहीं करता, बट मैं ज्यादातर जितने भी देखे ना, इंडिया वाले भी और बाहर के भी, मतलब जितने भी मैंने इंडिया के मोस्टली सुने हैं, मीमे और इसका लड़ाई हुई थी जब रफ्तार का, तो उसका डिस मुझे समझ में आया कि एक दूसरे को डिस कर रहे हैं, पर बाकी रैपर्स फालतू में ही सबको डिस किए जा रहे हैं कि अरे तेरा कंटेंट मेरे से अच्छा नहीं है, और तू तो मेरा बच्चा है, मैं तेरा बाप हूँ, मतलब ऑल में और कोई बात ही नहीं बोल रहे हैं। बट इफ यू सी फारिश शफी, वो बकचोदी में भी बात बोलता है, मतलब उसकी लिरिक्स बहुत ही अच्छी हैं। तो इंट्रोडक्शन इज अगेन वेरी लाइक ही वाज सेइंग फनी स्टूपिड सा गाना है, बट इफ यू सी द लिरिक्स तो बहुत मस्त है। लव्स बहुत अच्छा है उसका गाना। एक उसका गाना है यार, सारे ही अच्छे हैं। तो मतलब उसकी 9-10 ही गाने उसने डाले हैं अभी तक, पर वो सारे सुन सकते हो, बहुत अच्छे। आई एम अ बिग फैन। मैं सिर्फ फारिश शफी के ही गाने सुनता हूँ और कोई नहीं सुनता। और कौन सी मूवी? दूल्हे राजा। दूल्हे राजा तो आई थिंक अगर आपने नहीं देखी है तो ये बंद करो और जाके अभी देखो। दूल्हे राजा इज आई थिंक द फनीएस्ट, बाय फार द फनीएस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि इतनी टाइट लिखी है, जोक उसमें इतने ज्यादा टाइट है, कोई जगह नहीं दी। तो जितने टाइम कॉमेडी हो रही होती है बहुत टाइट होती है, उसके बाद वो मेलोड्रामा भी होता है, पर वो उसको साइड में रख दो, बाकी कॉमेडी इज वेरी वेरी फन। भागम भाग में बीच में जोक्स बहुत अच्छे जोक्स वो कहता है, वो ऐसे फेंक देता है ऐसे बम, तो कहता है उसने ऐसे खा के फेंका, मुझे लगा सीताफल। जस्ट स्टूपिड जोक्स बट वेरी वेरी फनी। there was an entire era of those films. वो मतलब शायद मैं नहीं देखता इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज आजकल, बट आजकल की कॉमेडी है क्या? कॉमेडी नहीं है वैसी, नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। और तुम लाइन से देखोगे ना, तो वो सेम बंदे ने ये सारी मूवीज लिखी हैं, तो आई वांटेड टू सी कि ये बंदा पॉपुलर है कि नहीं। वो आज भी लिख रहा है, भागम भाग वगैरह जिसने लिखी, उसी ने दूल्हे राजा भी लिख दिया। कौन है भाई? वो मर गया, वो मर गया भाई। उसका नाम नीरज वोरा मर गया। हाँ, नीरज वोरा, वो द गाय जिसका कैमियो भी होता था बहुत सारे फिल्म में। हाँ राइट, जो वो बना, अरे यार उसका एक बहुत फनी सीन है दौड़ मूवी में। हाँ ऑफ कोर्स, वो चाकू बना। हाँ चाकू बना ना मेरे पिताजी। हाँ यू नो दैट सीन, ये तो बहुत पॉपुलर सीन है। हाँ वो तो ओल्ड स्कूल डेज वाले सीन। Correct. But yes. What are your recommendations, Aditya? My recommendations are, first of all, I realize that there are a lot of naive children in this world who, like my wife. Sorry, fuck. My wife is not a child, first of all. This got very weird very quickly. Oh, dude. What? No, but there are a lot of naive people in this world. I'll correct that for legal reasons. But there are a lot of naive people in this world who haven't seen the Nimbu Pani video. So I would like to. Have you seen the Nimbu Pani video, right? Nimbu Pani video? Have you not seen the? ये Orkut के दिनों से शेयर हो जा रहा है. But I'm sure you must have seen it. अभी भूल गए होगे. Nimbu Pani, how to make Nimbu Pani. How to make Nimbu Pani. Delhi University का एक वीडियो आया था. नहीं देखा यार. I'll tell you a line. ये तो flat है. Do you remember? देखा. So everyone, please watch the Nimbu Pani video. And also my other recommendation is, please do not clip my last 30 seconds and put it out of context anywhere. Okay? That is also one thing. But my other recommendation was, क्या था यार मेरा recommendation? मैं एक book अभी शुरू करने वाला हूँ, A Case of Exploding Mangoes by मोहम्मद हनीफ. तो वो book मैं अभी पढ़ने वाला हूँ. तो वो शुरू करने वाले हो तो क्यों रेकमेंड क्योंकि वो मुझे रेकमेंड की गई है, तो अगर वो अच्छी नहीं हुई तो आप भी सफर करो, मैं भी सफर करूँ. तो ये very socialist kind of a approach to giving recommendation. Bharat, JCS also, I wanted to say JCS criminal psychology भी तुम channel. Oh yes, JCS ये वही वाला जो बता रहे थे कि criminal psychology.
By the way, by the way, also 32 people watching right now because I realize लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी स्ट्रीम खत्म होने वाली, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, मतलब like the stream, subscribe to the channel, and that will help us out. Also please fucking have some shame and subscribe to number one bullshit, and उसका अपने से ज्यादा तो कर दो यार, नंबर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब उसका चैनल है वो Amazon पर आ चुका है, ठीक है? मतलब ये थोड़ी लज्जा रखो लाइफ में। भरत, आपकी रिकमेंडेशन? मेरा को आपकी बोल रहा हूँ मैं सर, तेरी रिकमेंडेशन। मेरा अभी नहीं है यार कोई रिकमेंडेशन, आई एम वेरी लो ऑन कंटेंट राइट नाउ। ग्रेट। Anyway, so with that we have reached sort of the conclusion of the episode, unless if there is anything else that you want to recommend or you want to talk about of the comedy scene that you think you might have missed. Comedy scene? Yeah. Or any interesting anecdote you can tell us from your UFC days or comedy or you know comic stand or anything like that. वो casting couch वाली कहानी। casting couch मजाक। हाँ, एक बंदे को किसी ने कास्टिंग काउच समझ लिया। नहीं बताऊंगा बंदा कौन है, आप समझ गए होंगे। एक कॉमिक है नीतू करके एक कॉमिक है, शी इज वेरी फनी। उसका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसने एक ही डाला है वीडियो, तो अगर देखना है तो वो देख सकते हो। नीतू का पूरा नाम मुझे रिसर्च नीतू आई थिंक मिल जाएगा। स्टैंड अप कॉमिक नीतू मिल जाना चाहिए। हाँ मिल जाना चाहिए। वो ऐसे लिखती है कि मैडम नीतू व्हाटएवर नीतू मैडम की टीम प्रस्तुत करती है, इस तरह की कुछ weird चीजें लिखती है। बट नॉट दिस इज नॉट नीति पाल्टा राइट? यू आर नॉट नॉट नीति पाल्टा नहीं, नीतू का असली नाम ढूंढूं क्या, मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम से उसने किया नहीं है बॉम्बे में सेट यार। YouTube पे मिल जाएगा। Sorry, Bharat is laughing at some comment that has come. हाँ बता ना। नीतू भारद्वाज है, I think. नीतू भारद्वाज, yes. भाई ये सब रौनक सिंह करके हमारा एक व्यूअर है, वो सब देखता है, और शशांक ने फटाक से बताया। हाँ सबने। Okay, yeah. So those are recommendations. Somebody Zinch has said, मतलब नीति पाल्टा is not funny. नहीं, she is funny, but I was gonna नीति पाल्टा को तुम लोगों ने देख रखा होगा ना, कॉमिक्स जज भी थी, बट नीतू को नहीं देखा होगा, इसलिए बता। All right. So with that we have reached the end of our episode. Thank you guys for watching and thank you for joining us, Shashwat. This was a lot of fun, and I hope you had fun too. I had fun. Thank you for giving us your time. Also, to anyone who's offended by anything on this podcast, we apologize wholeheartedly. बाद में पब्लिक अपॉलॉजी नहीं देंगे हम लोग, अभी दे रहे हैं। तो अगर आपको बुरा लगा हो तो अभी ये पब्लिक अपॉलॉजी आगे नहीं मिलने वाली, प्लीज इससे काम चला लो। आई डोंट अपोलोजाइज, जो भी बोला इन लोगों ने बोला। आई अपोलोजाइज फॉर नथिंग। क्या कर लोगे तुम? मतलब पता है ये भी एक चीज है कि बहुत सारे लोग अपोलोजाइज करते हैं क्योंकि दे हैव अ लॉट एट स्टेक। व्हाट डू आई हैव एट स्टेक? कर लो, क्या ले लोगे मेरे से? क्या ले लोगे? कुछ नहीं कर रहा मैं अभी, ले लो, छीन लो, जाओ। बाय। Okay, chalo. On that note, we come to the end of the episode, and I'm gonna stop the